Good morning, students. Today we will discuss our fourth chapter, Chemical Kinetics. Students, for a chemical reaction, it is very important to know about the feasibility of reaction, extent of reaction, and third is rate of reaction. To study a chemical reaction, we should know about the feasibility, extent, and rate. Feasibility we can determine with the help of thermodynamics by the delta G. If delta G is negative, means reaction is spontaneous and possible, feasible. Extent, again एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब कितने % रिएक्शन हुई है या होगी. तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन अगेन वी कैन डिटरमाइन थ्रू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc. If Kc is high, extent of reaction is high. But third, rate of reaction, we can determine or we can study rate of reaction with the help of chemical kinetics movement. So chemical kinetics is the branch of chemistry which deals with the study of rate of reaction and its mechanism. ठीक है बच्चों, we will take an example. Thermodynamics कहती है डायमंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट. डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू काइनेटिक्स दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो. मीन्स कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट इज वेरी स्लो reaction. So we can say that diamond is forever. That means rate of reaction इतना स्लो है कि हम इस रिएक्शन को पॉसिबल नहीं करवा पाते हैं, है ना. या इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्वर्ट ग्रेफाइट इनटू डायमंड, जबकि केवल थर्मोडायनामिक्स की स्टडी से हमें लगता था कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो दैट व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन. बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन, सपोज एक रिएक्शन लेते हैं इन विच रिएक्टेंट R is converted into product P. So we can calculate rate of reaction with the help of change in concentration of reactant and change in concentration of product. हम इनके concentration की में चेंज की हेल्प से रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं. For example, so we can say that rate of reaction is the change in concentration of reactant or product in unit time. 1 unit time में change concentration of reactant या concentration of product में जो भी change हुआ है, that is called rate of reaction. For example, if R is the reactant and P is the product, suppose at time T1, concentration of reactant is suppose R1 and concentration of product P1 था. At time T2 what happened? Concentration becomes R2 and concentration of product becomes P2. So what is the change in concentration of reactant? Change in concentration of reactant becomes R2 minus R1. This is change in concentration of reactant, which can be represented as delta R. What is delta? Change. What is square bracket? Concentration. What is R? Reactant. So this is change in concentration of reactant, and this is equal to R2 minus R1. Same
In case of product, change, this is change, this is concentration, and this is product. So change in concentration of product is P2 minus P1, and change in time is T2 minus T1. ठीक है, so we can write that rate of reaction, which is also represented as a small r, is change in concentration of reactant upon change in concentration of time, but with minus sign, or change in concentration of product upon change in time. We can calculate rate of reaction with the help of change in concentration of reactant or with the help of change in concentration of product in unit time. What is the meaning of minus and plus? This minus sign indicates that concentration of reactant decreases, यानी R1 ज़्यादा है R2 से, है ना. सो दिस वैल्यू क्या आएगी, दिस बिकम्स नेगेटिव. सो उस नेगेटिव को एक फ्रूटफुल क्वांटिटी वापस पॉजिटिव बनाने के लिए रेट को फिर से आप पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाते हैं. मींस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट रेट ऑफ concentration of reactant decreases. As the time passes, concentration of product increases. concentration पहले प्रोडक्ट कम बना था और अब ज़्यादा बन गया जैसे जैसे टाइम बीत रहा है. सो concentration of product increases. That's why ये प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है increase in concentration of product, and negative sign decrease in concentration of reactant. So what will be the definition of rate of reaction? Rate of reaction is the decrease in concentration of reactant upon change in time, or increase in concentration of product in unit time. This is called rate of reaction. We can also understand this with the help of graph. जैसे जैसे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ देखें बच्चों, तो स्टार्टिंग में एट टाइम 0 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या था, हाईएस्ट था. जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलते गए और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गया, डिक्रीज, है ना. तो ये ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे. अब सपोज एट टाइम T1 कंसंट्रेशन इज R1, and at time T2 concentration is R2. So this is change in time, and this is change in concentration of reactant. ठीक है. So what is the rate of reaction? Rate of reaction is change in concentration of reactant upon change in time, but concentration of reactant क्या हो रहा है, डिक्रीज. देखिए R1 ज़्यादा है एंड R2 क्या है, कम. तो जब हम यहाँ पर डेल्टा R निकालेंगे R2 माइनस R1 करेंगे और यहाँ पे T2 माइनस T1 करेंगे, देन हमारा आंसर ये वैल्यू नेगेटिव आएगी और फिर माइनस साइन से वो प्लस हो जाएगी. ठीक है. सेम वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट ग्राफ. कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड चेंज इन टाइम. सपोज एट this is starting point when reaction start. So we can say that at time t 0 जब रिएक्शन स्टार्ट हुई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या था, 0. एज द टाइम पासेस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस. ठीक है, इंक्रीज हो रहा है. सो ग्राफ कैसे आ रहा है, ऐसे. एट टाइम T1 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज P1. एट टाइम T2 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज P2. So this is change in time and this is change in concentration of product. So how can we calculate R? R is change in concentration of product
मीन्स P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1 जस्ट लाइक रिएक्टेंट. ठीक है, बट दिस P2 इज ग्रेटर देन P1, so दिस वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, है ना. सो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट. इसको हम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और चेंज इन टाइम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं. ठीक है बच्चों. नाउ दिस रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, दिस रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. व्हाट इज द डेफिनेशन? Decrease in concentration of reactant in unit time or increase in concentration of product in unit time. This is called average rate of reaction. But बच्चों यानी इस टाइम T1 और T2 के बीच रेट ऑफ रिएक्शन ये आ रही है. बट अगर हमें एक पर्टिकुलर टाइम इस पॉइंट पर, इस टाइम पर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, जिसे हम बोलेंगे क्या? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट ऑफ रिएक्शन एट अ मोमेंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम. दिस इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है. सो हाउ कैन वी कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, है ना. देन इस पॉइंट पर इसका जो स्लोप आएगा दैट विल बी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इन दिस ग्राफ. ठीक है. सो वी कैन कैलकुलेट इट एज, write it as, here reactant upon dt. T tends to 0, so we can write it as minus dr by dt. In case of product, we can write R instantaneous as dp upon dt. माइनस साइन रिएक्टेंट में लगता है और प्लस प्रोडक्ट में. ठीक है. सो दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. तो इस स्लोप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. ऐसे ही हम प्रोडक्ट के पॉइंट, इस पॉइंट पर हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे एक इस पॉइंट पर हमें निकालना है सपोज, है ना. तो हम इस वैल्यू से इस पॉइंट पे अगर हमें निकालना है, तो जैसे हमने यहाँ पे इसकी हेल्प से, स्लोप की हेल्प से कैलकुलेट किया, हम यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज dr by dt और dp by dt. ठीक है बच्चों. हम यहाँ पे भी इसका एक ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे इसके भी स्लोप से, जस्ट लाइक दिस. एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, उससे आपको, उस फिगर से आपको अच्छे से समझ में आएगा. सी दिस ग्राफ. दिस इज द ग्राफ ऑफ रिएक्टेंट ना, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है एंड टाइम भी मैंने एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम वेयर t इज इक्वल टू 600 सेकेंड. सो हम लोगों यहाँ पर इसकी हेल्प से, हम स्लोप की हेल्प से स्लोप कैलकुलेट करेंगे एंड दैट विल बी इंस्टेंटेनियस रेट. कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, ये चेंज इन कंसंट्रेशन कितना आया है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ले लेंगे. ये वैल्यू लगभग 0.0165 है, 0.02 से थोड़ा कम, और यहाँ पे ये वैल्यू है 0.037. तो 0.037 माइनस 0.0165, दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. और टाइम चेंज देखिए, दिस इज 800 T2 है और T1 क्या है 400. तो 800 माइनस 400, T2 माइनस T1, टाइम ले लेंगे एंड देन वी कैन कैलकुलेट दिस चेंज अपॉन दिस चेंज 400, यानी 0.0165 ये है एंड ये क्या है 0.037, है ना. इस डिफरेंस से R2 और R1 और यहाँ पे T2 और T1, इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है बच्चों. ये T1 है हमारा 400, ये T2 है ना. और इस T1 पे हमारा ये क्या है 0.037.
कंसंट्रेशन दिया हुआ है और यहाँ पे कंसंट्रेशन 0.0165 दिया हुआ है, तो इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। Now this is instantaneous rate of reaction. Now what is the unit of rate of reaction? Unit of rate of reaction. Rate of reaction को हम R से, है ना, या instantaneous rate of reaction है तो माइनस dR/dt या प्लस dP/dt से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसकी यूनिट क्या है बच्चों? R रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होता है? देखिए, कंसंट्रेशन टर्म है एंड टाइम है ना। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? कंसंट्रेशन की यूनिट है यानी हमारा कंसंट्रेशन और टाइम, यही तो ले रहे हैं रेट में। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, है ना। टाइम की क्या होती है? सेकेंड, तो ये ऊपर जाएगा सेकेंड इनवर्स। सो दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नाउ समटाइम्स टाइम मिनट में होता है, मोस्टली इट इज़ इन सेकेंड। If reactant and product are in gaseous state, so in place of concentration we will take what? Pressure, ठीक है। सो प्रेशर, अगर हम यहाँ पे प्रेशर लेते हैं फॉर गैसियस रिएक्शन, हम क्या लेंगे? प्रेशर। तो अगर हम प्रेशर लेंगे देन यूनिट क्या हो जाएगी? प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर और टाइम की यूनिट सेकेंड, ऊपर गया सेकेंड इनवर्स। सो फॉर गैसियस रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। वन मोर थिंग, इफ रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस की। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन, अगर यहाँ पे बच्चों 2 मोल्स होते और यहाँ पर 1 मोल ही है, देन रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी? देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। देखिए क्या होगी? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ माइनस साइन अपॉन चेंज इन टाइम, और ये क्या होगा? 1/2। दिस इज कॉल्ड, देन दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? अगर हम प्रोडक्ट के टर्म में आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दिया है, तब प्रोडक्ट में प्लस लगाते हैं, है ना। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, बट यार ओनली 1 मोल है, तो यहाँ पे हमें क्या 1 ही लेना है, ठीक है। तो 1/1 यही लेंगे। सो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन ये है, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ये। सो आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दैट 2 मोल्स अगर यहाँ पे 3 होते तो हम 1/3 कर देते, अगर यहाँ पे होते 2 मोल्स तो हम यहाँ 1/2 करते, ठीक है। तो दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज ओनली, दिस टर्म इज नोन एज रेट ऑफ disappearance ऑफ रिएक्टेंट। यानी इसी इक्वेशन में अगर आपसे पूछा जाए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट क्या है, तो वो ये होगा, और अगर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है तो वो रिएक्टेंट के टर्म में हाफ लगाएंगे। ये क्या है? दिस इज आवर रेट ऑफ रिएक्शन, एज वेल एज इट इज ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयर हो रहा है ना, अपीयरेंस ऑफ product. So this is rate of appearance of product and this is rate of, only this term is rate of disappearance of reactant and rate of reaction, ठीक है। फॉर फर्स्ट केस, जो अभी हम लोगों ने पहला केस डिस्कस किया था जिसमें यहाँ पे 1 मोल्स थे, वहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन थी, वहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन थी वही रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट भी था और वही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट भी था। लेकिन सेकेंड केस जिसमें यहाँ पे 2 मोल्स आ गए, तो देखिए चेंज बच्चों, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल है, बट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन
में ये रिलेशन है, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गया है 2R, यानी रेट ऑफ रिएक्शन का डबल, यानी ये जिस रेट से डिसअपीयर हो रहा है ना, इसकी ये फास्ट रेट से डिसअपीयर हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन इंटू 2 हो जाएगा ना, अगर हम ये इधर लाएंगे तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट क्या आएगा 2R। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग, आप पहले ये वीडियो ध्यान से समझ लेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे जैसे कि बोर्ड में आते हैं।